I am just taking one example for 3 by 3 matrix. How will you will solve it? The method is same. First of all, we will try to make one here in this place one, and then zero in remaining two places. And next attempt will be our to get one here. ठीक है? Our remaining two zeros, wherever first you can find out, there is no problem. But in the next case, we will try to get one here and zero zero in remaining two places. So first of all, we are adopting the operation for getting one here. We are adding R1 plus R2 and subtracting third row. ठीक है, पहले हम क्या काम कर रहे हैं, इन टू रोज को ऐड करके थर्ड को माइनस कर रहे हैं. 2 2 4, 4 में से 3 माइनस किया, देखो 1 आ गया. ठीक है, इसका हमें 1 आने के बाद फिर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करेंगे, जो भी करना होगा. देखिए जो ऑपरेशन हम इधर लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट साइड में करना पड़ेगा. इसके अंदर कई सारे ऑपरेशन हो रहे हैं. पहले हमने इन दोनों को ऐड किया तो -1 आया. ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इट विल बी आल्सो 1. 3 3 6 6 minus 2 4. ठीक है, we are adding row 1 plus row 2 and subtracting row 3. ठीक है, in the first row column the remaining element will be same as it is they were. 2 2 3 and 3 minus 2 2. ठीक है, just I am removing just this space. We can use the one operation here, and just I am closing this one. Equal to, what we have done, we have added the first two rows and subtracted the third one. So that will be equal to 1 1. ठीक है, और -1. हमने क्या काम किया था, दोनों रो को ऐड किया, 1 आ गया, 0 माइनस किया 1, 0 प्लस 1 को ऐड किया 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस 0 एंड -1. The remaining element will be as it is 0 1 0 0 0 1 and matrix A. ठीक है, now our aim is 0 in these two places. So we will can R1 R2 minus के 2R1, R2 minus 2R1 and R3 minus 3R1. ठीक है, तो we can get 0 easily. Just check here. 1 1 4, ये तो as it is रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड टर्म में वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड सबट्रैक्टिंग, इट इज इक्वल टू 0. 2 से 2 माइनस किया, इट इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2 4 जा 8 -5. 3 से माइनस किया 0. 3 माइनस किया, दैट इज इक्वल टू -5. 3 4 जा 12. 12 2 minus 12 minus 10. The same operation we have to do here also. This is equal to 1 1 minus 1. We are using the operation in second row and third row. So second row में we are equal to A. ठीक है, now we got here 1 0 0. Now our aim to get 1 here. ठीक है, so one by one we will do the steps. So we got, if we can interchange R2, we got here so here we are getting these
comes here 1 0 0 1 0 minus 5 4 minus 5 minus 10. Now our aim to get 1 here at this place. So how we can get 1 in this place? We will try to find out that one. Okay, how is it possible? So we can, how we can form, if we add this one, है ना, this we अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं, 1 will become, but it creates the problem that it will be 1 also here. We can interchange R2 R3 को we are changing, first R2 changing to R3, interchanging. What will be the benefit of that one? 1 1 4 0 5 minus 10 or 0 0 minus 5. Okay. Now our aim to get this one. In the first we complete this operation in right hand side also. Then it becomes 1 1 minus 1 equal to minus 3 4 minus 2 minus 1 or 2. For getting 1 we can divide by minus 5. In R2 we are using operation 1 upon minus 5 R2. हमने क्या काम किया, R2 को हम minus 5 से डिवाइड कर रहे हैं. If we divide minus 5 it will become 1 1 4 0 1 2 0 0 minus 5. It is equal to, ठीक है, same operation we have to do here also. We have divided the second row by minus 5. So here also we have to divide 1 1 minus 1 divided by minus 5. It becomes 3 upon 5 3 upon 5 or 4 upon 5 minus 4 upon 5. It is equal to minus 2 minus 1 or 2. So we have done, we got here 1 0, but 0 we have to form here also. ठीक है, so it means so many operations, space is so short, so we have to remove first part, first 2 operations, है ना, for completing this one. बेटा हम ये जो करा, हमने ऑपरेशन किया था यहाँ पे 1 लाने के लिए किया था, ठीक है, क्योंकि हमें 1 यहाँ पर भी लाना है. तो अगर हम 2 ऑपरेशन एक साथ कर लें तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा. जैसे कि हमें यहाँ पर भी 1 लाना है, यहाँ पर भी हम माइनस 5 से डिवाइड कर लें. यानी कि अगर हम ये करें कि R3 में जो ऑपरेशन जो R2 में किया है वो हम R3 में भी ऑपरेशन करें. ठीक है, माइनस 5 से डिवाइड करने पे क्या फायदा होगा, ये देखो यहाँ पर भी 1 बन जाएगा. तो हमें एक स्टेप बच जाएगा, जो हमने अलग स्टेप में करना पड़ता, वो हमारा 1 इजीली आ जाएगा. माइनस 5 से हमने क्या किया, सेकंड रो को डिवाइड किया तो देखो 1 और 2 आ गया. माइनस 5 से इसको भी डिवाइड किया, यहाँ 1 आ गया, क्योंकि हमें 1 यहाँ पर लेके आना है, 2 0 यहाँ पर लेके आना है. ठीक है, तो यहाँ में लेफ्ट साइड में क्या, वही राइट साइड में करना पड़ेगा. अगर हम इसको माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 upon 5 हो जाएगा. 2 upon 5 और ये 1 upon 5 और माइनस के 2 upon 5 होगी. तो ये हमने ऑपरेशन करने के बाद ये हमें यहाँ पर, अब हमारा एम क्या रह गया, यहाँ पर 0 लेके आना है और यहाँ पर 2 0 लेके आना है. ठीक है, इसके लिए हमने जो ऑपरेशन किए उसमें हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम R2 में जो है माइनस कर रहे हैं. ठीक है, R2 वाली लाइन में इसको अगर हमने लाने के लिए, हमें इसको 0 लाने के लिए हमें क्या काम कर सकते हैं, 2 R3 कर लें तो ये वाला 0 आ जाएगा. ठीक है, और क्या ऑपरेशन करें, R1 में हम क्या माइनस कर लें, 4 R3 माइनस 2 भी आ जाएगा.
ठीक है, फिर ये वाला रह जाएगा, या इसको पहले हम ठीक है बेटा, यहाँ पर है ना, हमने अब जो एम हमारा ये है कि इन दोनों जीरो को ले आते हैं पहले। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, सेकंड रो को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, थर्ड रो को माइनस कर देते हैं फर्स्ट रो में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो दो जीरो में इजीली मिल जाएंगे। तो पहला काम हम यही कर रहे हैं, 1 1 ये जीरो हो गया, ठीक है, फिर 0 1, और ये कितना हो गया आपका, ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पर कितना है आपका, 0 0 1। ये हमने कर लिया ऑपरेशन। अब हमारे पास जो है सिर्फ ये 1 0 बनाना रह गया है। वही ऑपरेशन जो हमने लेफ्ट साइड में किया है वही हम राइट साइड में करेंगे। ठीक है, इसको हमने ऑपरेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, हमने क्या काम किया है, ये थोड़ा ऑपरेशन आप आराम से कर लेना। इसकी कैलकुलेशन -3/5, ठीक है, और ये आ रहा है आपका 1/5, 3/5, उसके बाद है -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 माइनस के 2/5। देखो इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने जो ऑपरेशन किया है, क्या ऑपरेशन किया हमने, R2 में से 2R3 माइनस किया, जो सेकेंड रो माइनस करेंगे। पहले हमारे पास 1 था, 1 में से 4 से मल्टीप्लाई करके 4 टू 8/5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8/5 को माइनस करते हैं 1 तो माइनस 3/5। इसी तरीके से हमने इसमें क्या किया, इसमें माइनस करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 4/5 को 1 में से, तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। फिर यहाँ -1 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 8/5, ये माइनस का 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ गया 3/5। फिर सेकंड रो में हमने क्या किया है, सेकंड रो में हमने ये किया है कि 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को, 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो को इसमें से माइनस किया है। तो 2 2 जब 4/5, 3/5 में से माइनस करेंगे तो -1/5 आ गया। ये आपका 2/5 है, 3/5 में से माइनस किया तो 1/5 आ गया। ये 2 2 जब 4/5, ये माइनस का 4/5 है, ये भी -4/5 है, सेम इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0 हो गया। और थर्ड रो आपकी एज इट इज रही है, 2/5, 1/5 -2/5। ठीक है, अब हमारे पास सारा काम हो चुका है, सिर्फ इसको जीरो बनाना रह गया, ये बहुत आसान रह गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, R1 में क्या कर सकते हैं हम, R1 माइनस R2 कर सकते हैं। बस जब हम इसमें माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये कितना हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही आईडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लानी थी, ये आ चुकी है। ठीक है, R1 में से हमने क्या माइनस किया है, R2 माइनस किया। जब R1 में से R2 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2/5, ये 0 हो गया आपका, ये आपका, ठीक है, 3/5 एज इट इज रहा है ना। सिर्फ एक ही ऑपरेशन किया है हमने, इससे ज्यादा ऑपरेशन किए नहीं है, तो ये बाकी सब टर्म एज इट इज रहेंगी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, R1 में से R2 को माइनस किया। जब आप इसको माइनस करोगे, -3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2/5 आ गया। ये टर्म सेम है, इक्वल है, माइनस करेंगे 0 हो गया। ठीक है, 3/5 में से 0 माइनस करेंगे तो 3/5 एज इट इज रहेगा। तो -1/5 ये वाली टर्म एज इट इज रहने दीजिए, 1/5 एज इट इज, 0 2/5, 1/5 और माइनस के 2/5। तो यहाँ पर हमने जो है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इनवर्स कहलाएगा। इसमें क्या है, कई सारे ऑपरेशन हमें कई बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जो 2x2 में तो हमें 3 4 ऑपरेशन में काम चल जाता है, इसमें ऑपरेशन 6 7 8 भी हो जाते हैं, 9 भी हो जाते हैं। तो एम हमारा यही होगा, पहले 1 बनाना, फिर इन दोनों को 0 बनाना, पहले यहाँ 1 बनाना, फिर इन दोनों को 0 बनाना। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले इन दोनों को 0 बना लिया था, क्योंकि इन दोनों को 0 बना के जो है हमारे लिए आसानी हो रही थी। ये दोनों 0 इजीली बन रहे थे और ऊपर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है,
तो आप पहले इसको भी 0 बना सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली टर्म में थोड़ा हमें ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ते, एक ऑपरेशन बढ़ जाता, वही इतना फर्क था। ये क्योंकि मल्टीपल में था, कि ये 2 के मल्टीपल में था, ये 4 के मल्टीपल में था, सबट्रैक्ट करने पे इजीली आ रहे थे दोनों 0। तो पहले हमने इन दोनों 0 को गेन किया, आफ्टर दैट वी ट्राई टू गेट दिस 0। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कम से कम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाती है नंबर। ये फ्रैक्शन में होने की वजह से आपको सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा पेशेंस रखनी होगी। नोटबुक से सब्ट्रैक्ट करके उसको रफ नोटबुक पे आप करके देखेंगे, अदरवाइज जो है इसमें मिस्टेक हो सकती है यहाँ। मगर आपकी कोई एक दो मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से 1 नंबर कट जाता है, लेकिन 4 में से 3 नंबर आपके मिल जाते हैं। ठीक है, मगर आप कोशिश ये करो कि प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार कोशिश क्वेश्चन कर आप इजीली कर पाओगे। तो ये एक्सरसाइज आप जो 3.4 का जो 3x3 का रह गया था, ये मैंने आपको आज समझा दिया। अब मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज कराता हूँ। देखो बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज इसकी हम ले रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, मैं लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन, फिर बाद में मेथड की बात करते हैं। लेट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है 0 1 1 0 0 0 सॉरी, और ए आई प्लस बी ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन -1 बी ए, ये गिवन। तो हमें प्रूव राइज द एंट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको प्रूव करना है। तो ये आपका नंबर ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसे प्रूव करते हैं, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका 11 में 4 था। ठीक है, वो आपने उस समय नहीं किया था, लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूँ ऐसे हम उसको प्रूव करने का मेथड है। पहले हम चेक करते हैं 4n = 1। ठीक है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है ए आई प्लस बी ए टू दी पावर एन। तो यहाँ पर अगर हम एन की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ए आई प्लस बी ए, इसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी इक्वल टू ए टू दी पावर एन की जगह 1 लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस ए टू दी पावर 0, यानी कि बी ए, यानी कि ये टर्म आ रही है। तो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए टू दी पावर 0 तो 1 ही हो गया, यानी कि ए आई प्लस बी ए टू दी पावर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए आई प्लस बी ए के इक्वल ही आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सो इट इज 2 4 n = 1। सो इट इज 2 4 n = 1। अब क्या करते हैं उसमें, नेक्स्ट स्टेप में लेट अस सपोज it is 2 4 n = n। इसके लिए हम 2 मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि n = n के लिए ट्रू है। तो n = n के लिए अगर हमने 2 माना, इसको सपोज किया ए आई प्लस बी ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर एम आई प्लस एन ए टू दी पावर m -1 बी ए, इसको हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि n = 1 के लिए जैसे हमने चेक किया तो उसके लिए ट्रू आया, फिर n = n के लिए हमने सपोज कर लिया, n = n का मतलब है कोई भी टर्म के लिए,
मतलब यहाँ पर n टर्म हुई हुई है, n का मतलब इट में भी 10, 100, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म लेते हैं हम, मान लीजिए n टर्म लेते हैं, अगर उसके लिए ट्रू है, उससे नेक्स्ट के लिए भी ट्रू हो जाती है, तो देन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल। अगर हमने n की वैल्यू 19 ली, 20 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सबके लिए ट्रू होगी। n क्योंकि आर्बिट्रेरी है, इट रिप्रेजेंट फॉर ऑल द नंबर। ठीक है, तो ये हमने n के लिए सपोज किया है। नाउ वी विल प्रूव फॉर n इक्वल टू n प्लस 1। हमको ये प्रूव करना है n इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो उसे प्रूव करने के लिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया वो चेंज क्या हो गया, अब हमें ये प्रूव करना होगा ai प्लस बी ए टू दी पावर m प्लस 1 इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस 1 i प्लस m प्लस 1 a टू दी पावर m बी ए। ये हमें प्रूव करना होगा। इसका हम यूज कर सकते हैं जिसको हमने सपोज किया है, इट इज 2 4 n इज इक्वल टू m। इसका यूज करके नाउ यू हैव टू प्रूव दिस वन, सेकंड पार्ट यू हैव टू प्रूव, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसकी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसकी लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू दी पावर m प्लस 1। ठीक है, इसकी पावर को हम क्या ले रहे हैं, m प्लस 1 ले रहे हैं। तो वी कैन राइट दिस वन आल्सो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m लिख दिया मैंने और a को मैंने ऐसे लिख दिया ए आई प्लस बी ए। इसकी पावर m प्लस 1 थी, तो पावर m मैंने यहाँ लिख दी और 1 पावर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने है ना इसकी जगह, क्योंकि हम इसकी करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, हमने क्या लिखा, इसकी जगह लिख दिया ए टू दी पावर एम आई प्लस एम ए टू दी पावर m माइनस 1 ये जो नंबर है, और ए टू दी पावर m प्लस 1 हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की, मैंने ए टू दी पावर m माइनस 1 और ए से मल्टीप्लाई करी, तो ए टू दी पावर कितना हो गया, ये m हो गया। और बाकी जो टर्म है ये बी है, बी की मल्टीप्लाई यहाँ पर बी आ गया, और ए की मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे, ये लिख दिया हमने अभी। ठीक है, ए इंटू आई लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले टर्म के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम ए टू दी पावर एम माइनस 1 और बी स्क्वायर और ए टू दी पावर इंटू ए, यानी कि ए की मल्टीप्लाई हमें ए के साथ करनी है। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ए की मल्टीप्लाई अगर हम ए के साथ करते हैं, ये मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई। ए की मल्टीप्लाई अगर आप ए के साथ करोगे तो वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 1 और 0 0 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसके साथ 0 1 0 0 के साथ, इट विल बी इक्वल टू, देखो 0 आ जाएगा, 0 प्लस इंटू 1 यानी कि 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। इसी तरीके से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि ये क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है। यानी कि ए स्क्वायर जो बराबर है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी नल मैट्रिक्स का मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इन वाले टर्म से करेंगे वो क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 0 मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई के बराबर होती है। आप आई की मल्टीप्लाई आई टी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आई टी मैट्रिक्स से करेंगे तो आई के एक को आ जाएगा। तो यू कैन राइट दिस वन
a टू दी पावर n प्लस 1 आई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको आई लिख दिया प्लस, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों टर्म सेम ही है। ठीक है, वो a टू दी पावर m b i a आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, m एक्स्ट्रा a टू दी पावर m b a i आ रहा है, यानी कि ये वाली जो टर्म है दोनों में कॉमन है, तो वी कैन टेक कॉमन a टू दी पावर m b i a। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा m प्लस 1, आप बाहर लिख सकते हो a टू दी पावर m b, आप a की मल्टीप्लाई आईएनटी मैट्रिक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा भाई। अगर आईएनटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम a की, तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि ठीक है उस मैट्रिक्स को कोई चाहिए, आई किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम आई मैट्रिक्स से करते हैं वो एक इक्वल आ जाएगा, तो ये एक इक्वल आ गया, यानी कि यही हमें प्रूव करना था। तो वो राइट हैंड साइड में हमने यही लेके आना था, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर जो भी वैल्यू हमने ली थी n इज इक्वल टू n के लिए, वो n इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए भी हमें प्रूव करने में हेल्प कर रही है। इसको हमने ट्रू सपोज किया था। देखो मेथड क्या है, मेथड इसमें ये हम यूज करते हैं, पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, जो गिवन कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया। तो देखो ऑब्जर्व क्या किया हमने, क्योंकि स्पेस कम थी तो मैंने a टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 रखा, अगले स्टेप में आपको b लिखना था, तो दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं, ये सेम ही है, a टू दी पावर 0 तो 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको यहीं पे छोड़ दिया, दोनों साइड इक्वल हो गई। फिर हमने सपोज किया इट इज टू फॉर n इज इक्वल टू m, फिर n इज इक्वल टू m के लिए हमने वी आर सपोजिंग इट इज इक्वल टू, वी आर एक्सेप्टिंग इट इज टू बाय यूजिंग दिस रिलेशन। If we can prove that it is true for n is equal to m plus 1, then we accept it is true for all values. ठीक है, ये मेथड है, अगर हम इसका यूज करके ये प्रूव कर पाए क्या कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n प्लस 1, देन वी एक्सेप्ट इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। तो m की जगह आप कोई भी वैल्यू लोगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबके लिए ट्रू हो जाएगा, फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेथड है, इट इज नोन एज द मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इसको हमने लास्ट ईयर नहीं किया था 11th में, लेकिन अभी आपको हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं मिसिंग के भी, तो कोई छोड़ नहीं रहे, पता नहीं सिलेबस में क्या रिड्यूस करेंगे नहीं करेंगे, ये बाद में पता चलेगा। तो ये मेथड है, मेथड कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसको धीरे धीरे करोगे तो याद हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो है मैंने आपको जो आज कराया है वो 3x3 की मैट्रिक्स कराई है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। ठीक है, आप इसी को आप इन दोनों जो दो क्वेश्चन रहते हैं 3x3 के, मैंने एक क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि एक बार में गलत आए, अगर आंसर मैच ना करे तो आप उसको क्रॉस करके फिर दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, बिना उस पिछली कैलकुलेशन को चेक किए हुए पहले पूरा कर लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगी, वो मिल जाएगी, फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखने के बाद ये मैथमेटिकल इंडक्शन वाले 3 क्वेश्चन है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको किया है, बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखना, नहीं होंगे तो फिर हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज हम इतना ही फिनिश कर रहे हैं, तो आप ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आज कराया है इनके ऊपर जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो अनिल सर। जी सर, हेलो सर, I have completed. If some student want to ask any question, they can ask now. Please yes, unmute them.